Good morning, friends. This is part 7. This is part 7, and in which we will discuss hormonal control of menstrual cycle under chapter number 3, human reproduction. So, let's start. So, first of all, we will start it from the hypothalamus, that is the part of our forebrain. Hypothalamus secretes a special hormone that is called as GnRH, gonadotropin releasing hormone, and this hormone acts on the pituitary gland, anterior lobe of pituitary gland, stimulate to produce FSH. So this is the first hormone, FSH, which is released by the action of this gonadotropin releasing hormone that is secreted by the hypothalamus. Okay, and simultaneously this particular gonadotropin releasing hormone also act on the anterior lobe of pituitary gland for secretion of another hormone, LH, but the trigger of this secretion of this hormone will be activated on the 14th day when ovum will be completely matured at the time of Graafian follicle formation of Graafian follicle. So first of all, we will discuss about the functions of this FSH, follicular stimulating hormone. FSH stimulates the ovarian follicles to produce estrogen. So follicular phase will be started. So primary follicle, then secondary follicle, then tertiary follicle, then Graafian follicle. So the size of follicle will be gradually increases, so that we can say the number of follicular cells will also increases in every step, primary to secondary to tertiary to Graafian follicle, and these follicle cells will be responsible for secretion of this third hormone that is called as estrogen. Okay, so estrogen also the level of estrogen also increases simultaneously with increasing size of the follicle. Okay, so proliferative phase is caused by the increasing production of estrogen. एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से कौन सी फेज कॉज होगी? प्रोलिफरेटिव फेज कॉज होगी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द यूटेराइन वॉल, द थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजेस एज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन. ओके, एंड दिस LH, whenever this follicle is completely developed on the 14th day, Graafian follicle is formed. This LH is secreted from the anterior lobe of pituitary gland and also work on the ovary and responsible for ovulation. So now what happens after the ovulation? LH stimulates corpus luteum to secrete progesterone. So this is the fourth hormone of menstrual cycle. Okay, this one hormone is also इसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही सिक्रेट होता है, ये लगातार सिक्रेट होता रहता है. लेकिन यहाँ पर जो 4 बेसिक हार्मोन है जिनके बारे में हम बात करें, सो FSH1, एस्ट्रोजन नंबर 2, नंबर 3 रोल के हिसाब से बात करें, सबसे पहले FSH का रोल है, फिर उसके बाद में एस्ट्रोजन का रोल शुरू होता है, फिर LH का रोल शुरू होता है, और जैसे ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाती है अब प्रोजेस्टेरॉन का रोल शुरू हो जाएगा. क्या करेगा प्रोजेस्टेरॉन? secretory phases is caused by the increasing production of progesterone. secretory phases का मतलब अब यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसमें और सिक्रेशन शुरू हो जाएगा, और नाउ एंडोमेट्रियम विल बी कम्प्लीटली रेडी फॉर इम्प्लांटेशन. ठीक है, वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाएगा. वेन एवर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इम्प्लांटेशन हो जाएगा. और लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
तो अब यहाँ पर दो कंडीशन है, जो कार्पस ल्यूटियम बना था उसको वो 14-15 डे बना, लेकिन उसको 24-25 डे तक वो डीजनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि कार्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब यहाँ पर प्लेजेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लेजेंटा का फॉर्मेशन होने से प्लेजेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करना शुरू कर देता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन टिल द 9th मंथ, टिल द कंप्लीट प्रेगनेंसी, टिल द कंप्लीट गेस्ट्रेशन पीरियड, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल बी मेंटेन्ड, ओके। एंड ये इसका मेंटेन होना ज़रूरी है, नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन कम होने से यूटेराइन वॉल की शेडिंग हो जाएगी और एबॉर्शन हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो डेफिनेटली कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन डाउन जैसे ही होगा, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन तो वैसे ही यहाँ ओव्यूलेशन के बाद डाउन होना शुरू हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का भी डाउन हो जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन डाउन होगा वापस से एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेजेस, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन कम होगा यानी कि शेडिंग होना शुरू हो जाएगी, तो मेंस्ट्रुअल फेजेस इज कॉज्ड बाय द डिक्लाइन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मेंसेस शुरू हो जाएगी, और जैसे मेंसेस शुरू होती है एट द सेम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजेस, विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉलिकल्स, नए फॉलिकल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ही वापस से फॉलिकल बनना शुरू होंगे फिर वापस से एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। और फॉलिकल जैसे ही मैच्योर होगा फिर एलएच का सिक्रेशन हो जाएगा, फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा, फिर कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने से वापस से प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन डाउन होने लगेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन भी डाउन होगा और एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो जाएगी, फिर वापस से एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, and I hope you are able to understand what is the role of these four hormone, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था इसके पहले वीडियो में तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हाट इज़ द ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इट अकर्स इन प्राइमेट्स, मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स ओनली। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो ओएस्ट्रस साइकिल किसमें प्रेजेंट होता है, इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स सच एज काउ, sheep, rat, deer, dogs, tiger, etc. These are also mammal, but they are the non-primates. Okay, तो नॉन प्राइमेट्स में कौन सा साइकिल चलेगा, ओएस्ट्रस साइकिल चलेगा। आइए और आगे जान लेते हैं क्या डिफरेंस है। दिस साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, आपको मालूम है मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज ना, ओव्यूलेटरी नहीं लिखा है यहाँ पर, फेज एंड सेक्रेटरी फेज। तो दीज आर द 4 फेजेस जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो 4 फेजेस यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ओएस्ट्रस और हीट, सिर्फ एक ही फेज होती है एंड दैट इज द हीट फेज वी कैन से, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या डिफरेंस है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ब्लड फ्लो होता है, यानी कि मेंसेस होता है। इन दिस साइकिल मेंसेस क्यों होता है, क्योंकि जो यूटेराइन वॉल होती है उसकी शेडिंग होती है, ठीक है, तो ब्लड फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, इस साइकिल में ब्लड फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, 4th डिफरेंस में हम बात करते हैं। सो the broken endometrium is passed out during the menstruation, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम जो ब्रोक हो गया, जिसका शेडिंग हो गई है, वो पास्ड आउट होगी, यानी कि वो रिलीज होगी, वो मेंसेस के फॉर्म में बॉडी से बाहर आएगी, ब्लड फ्लो के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर क्या खास बात है, द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीएब्जॉर्ब्ड, ये क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। आपने महसूस भी किया होगा कि जिन एनिमल्स के नाम हमने लिए थे उनमें कभी भी ब्लीडिंग होते हुए आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो फिर बात करें हम, ये खास पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सिग्निफिकेंट फीचर क्या है, मेंसेस, ब्लड फ्लो,
लेकिन यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं होता है। एंड रीज़न क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। शेडिंग तो यहाँ पर भी होगी यूटेराइन वॉल की, लेकिन क्या हो गया? रीएब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, ब्लड वापस से रीएब्जॉर्ब हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए हम, सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में जो सेक्स अर्ज है उसका इंक्रीजमेंट नहीं होता, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर का इंक्रीजमेंट नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर इज इंक्रीजेस ड्यूरिंग द ऑयस्ट्रस पीरियड। जो हीट पीरियड होता है, उस हीट पीरियड में सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्स अर्ज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उसी से ये सिक्स डिफरेंस भी उसी से रिलेटेड है। फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल। ओके, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो पर्टिकुलर हीट पीरियड जो होता है, दैट्स वाई द फीमेल परमिट्स कॉपुलेशन ओनली एंड ओनली इन ड्यूरिंग दिस ऑयस्ट्रस पीरियड, ओनली हीट पीरियड। Okay, so these are the basic differences between menstrual cycle and oestrus cycle. Menstrual cycle occurs in primates, okay, monkey, ape, human beings, etc., where the oestrus cycle takes place in non-primates like deer, cow, tiger, etc. So I think you understand very well about these two types of cycles इन मैमल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब oogenesis प्रोसेस हम एक्सप्लेन करने जा रहे थे तो मैंने आपके लिए एक ये नोट बनाया था, और इसमें मैंने दो चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस, दोनों एक साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। oogenesis आप बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। आपको यहाँ पर ये बिफोर बर्थ कंडीशन याद रखनी है, आफ्टर प्यूबर्टी कंडीशन याद रखनी है, बिफोर द स्पर्म पेनेट्रेशन याद रखना है, एंड आफ्टर स्पर्म पेनेट्रेशन याद रखना है। जब आप इसको याद रखेंगे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। पोलर बॉडी के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, और इसके बाद में फिर इसको स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंस कर लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या होती है कि यहाँ जब हम फॉलिकुलर जेनेसिस के बारे में बात करते हैं, है ना, यहाँ पर ऊस साइट के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्राइमरी ऊस साइट, फिर प्राइमरी फॉलिकल। तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि प्राइमरी ऊस साइट क्या है, प्राइमरी फॉलिकल क्या है। तो ये प्राइमरी ऊस साइट बनता है ना, इसके बाद ही ये सारी प्रोसेस हो जाती है। प्राइमरी ऊस साइट जब बनता है तो ये प्राइमरी ऊस साइट जो है मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है, फिर इसके ऊपर ये फॉलिकल सेल्स डिपॉजिट होना शुरू होती है। तो प्राइमरी फॉलिकल, फिर और बढ़ेगा लेयर तो सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, ये सब कुछ प्राइमरी oocyte के साथ ही होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये अब यहाँ क्या हो रहा है, ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई तो अब ये सेकेंडरी oocyte बना है। क्या बना? ये सेकेंडरी oocyte बना। इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा आप। ये आपको ये जो फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस है ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। जब आप ओवरी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तब भी ये प्रोसेस आपको हेल्प करेगी। आपको आप यहाँ पर भी जो फॉलिकुलर जेनेसिस की प्रोसेस को मेंशन करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ पर आप चाहें तो बीच में टर्शरी सेकेंडरी फॉलिकल, जिसको सेकेंडरी कह दीजिए, इसको टर्शरी कह दीजिए। इसके बाद में मैच्योर फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल, इसको टर्शरी इन्होंने अलग से मेंशन किया है, हालांकि ये ग्राफियन फॉलिकल होना चाहिए, टर्शरी ये होना चाहिए। फिर ग्राफियन फॉलिकल्स इस तरीके से, फिर ओव्यूलेशन तक। इसके बाद में फिर आप इसमें देखें तो ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया, कार्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये पूरा फॉलिकुलर जेनेसिस की प्रोसेस ही है। ओवरी का डायग्राम क्या है, उसमें क्या है, ये सारे से फॉलिकल की प्रोसेस बता रहे हैं आप, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी काम आएगी आपको। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवेरियन इवेंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे तो भी ये फॉलिकुलर जेनेसिस की प्रोसेस आपको यहाँ पर काम आएगी। आप देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल, है ना, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल। देन इसके बाद में ओव्यूलेशन की प्रोसेस, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस, ये पूरी प्रोसेस है जो आपको यहाँ पर भी काम आएगी। इससे कोरिलेटेड कर लीजिए आप कौन से हार्मोन्स का इफेक्ट हो रहा है, जो चेंजेस इनमें आ रहे हैं उसमें हार्मोन का क्या रोल है, यहाँ से यहाँ तक FSH का रोल है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है अब प्रोजेस्टेरॉन का बनना शुरू हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल कहाँ पर, इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, एंडोमेट्रियम पे पड़ रहा है। तो इस तरीके से इसको भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसको आप जब समझ लेंगे तो आपको ये बहुत सारी जगह पर ये काम आएगी। और आपका जो कंसेप्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, ओवरी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, oogenesis की प्रोसेस से रिलेटेड आपके कंसेप्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है।
तो वीडियो के अंत में ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। इसके अलावा सो ये क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस तो ये हैं, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चंस ये हैं 5 क्वेश्चंस, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय।